Hello, my dear children. Very good morning. We are studying the company's account and the topic for future of shares, issue of shares, and the for future shares reissued, transfer to the capital reserve account. Just the topic that is going on. My dear children, how the entries are made on issue of shares, you know it very well. And how the shares are forfeited, it has been explained. How the shares are reissued, also explained. You have sent me a question number 83. When the shares forfeiture of shares issued at par, but in this question, this one is not given. How the shares are forfeited, these are the additional questions. So, just you can take it in easy way. This one is the revision for the sake of you. How the shares are forfeited in this question that is given. I have explained everything, just the issue of shares, the entries are made in the books of account, in company account, how the forfeited shares amount shown in the balance sheet. This one is also explained, and how these shares are reissued, maybe par, premium or discount, has been explained. But in additional question, again your request is granted. Sir, once more, just the forfeiture of shares must be explained. That's why in question number 83, practical questions that is given, we are going through the practical questions in your textbook. Just forfeiture of shares issued at par. That is the revisional class for the sake of you through this video. Now, Narmada Limited. This one is the question. I am explaining the question, and many times I have told you, just go through the question and try to understand the information given in the questions. And step by step, the entries can be recorded in the books. Narmada Limited was registered with an authorized capital of rupees 5 lakhs. 5 लाख रुपए से अथॉराइज्ड कैपिटल है और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है. कंपनी परचेज्ड एन एसेट्स फॉर रुपीज 2 lakhs. 2 लाख रुपए की संपत्ति कंपनी खरीद रही है. ये नहीं दिया गया है कि किससे खरीद रही है. And issued fully paid shares for it. And instead of paying the cash in exchange of the particular asset, the company issues shares in favor of that particular company or persons or that particular creditors. Balance, whatever the balance shares
30,000 वर issued to the public payable as follows. 30,000 शेयर्स, 20,000 शेयर उस एसेट्स के बदले, और क्योंकि 5 लाख की कैपिटल है, 10 रुपए वाले हैं, तो इसका मतलब है बेटा कि कंपनी के पास कुल 50,000 शेयर्स हैं। 10 से डिवाइड कर दिया 5 लाख को, आपको 50,000, तो 2 लाख के बदले उसे फुल्ली पेड शेयर्स यदि इशू किया जा रहा है तो 2 lakhs डिवाइडेड बाय 10, जस्ट यू कैन फाइंड द 20,000 शेयर्स issued to the for the purchase consideration of assets, and on application and allotment, application और allotment का पैसा एक ही साथ कंपनी ले रही है। on application and allotment 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 4 रुपए और सेकेंड कॉल पर 3 रुपए, मतलब 4 दिन 7 दिन 10 रुपए पूरा हो गए। 3 किस्तों में कंपनी ले रही है। गोविंद होल्डिंग 100 शेयर्स failed to pay the first call money and his shares were forfeited after the first call. गोविंद एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, तुरंत उसके शेयर को जब्त कर लिया जा रहा है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद। मतलब गोविंद से कुल उसी टाइम कंपनी जो है ऐसा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रेस्क्राइब्ड है कि यदि कोई शेयर होल्डर कोई भी पैसा किसी भी किस्त का देने में असमर्थ होता है तो कंपनी उसके शेयर को क्या करेगी, जब्त कर लेगी। और ऐसा गोविंद के साथ हुआ। उसके बाद गोपाल एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर कंपनी के हैं। ये जो है सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे रहा। अब हम एंट्री करते हैं, कैलकुलेशन उसी में करते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। फर्स्ट एंट्री will be recorded on purchasing the assets. What comes in debit? So the first entry will be, here you can see, just the first entry will be assets account debit, assets account debit to share capital, to share capital account. Amount will be 2 lakhs, 2 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी। नरेशन will be, narration being assets purchased for rupees 2 lakhs and 20,000 shares issued. Second entry will be on application and allotment, just we are receiving the money received by the company, कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर जो पैसा रिसीव किया जा रहा है, तो आप सीधे दूसरी एंट्री होती है व्हाट कम्स इन डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू शेयर application and allotment. $30,000 शेयर्स हैं और 3 रुपए के हिसाब से 30,000 into 3 equal to 90,000. Clear? And just this money will be transferred to the share capital account. So the entry share application and allotment account debit, share application and allotment account debit, allotment account debit to share capital,
टू शेयर कैपिटल। द अमाउंट विल बी 90,000। The amount will be 90,000. And share first call. On first call 4 rupees. So due the amount, fourth entry होगी share first call account debit. Share first call account debit to share capital. To share capital account. Amount will be, just we have to due the amount. First call पर 4 रुपीज है तो 30,000 into 4 इक्वल टू 1,20,000। जो अमाउंट ड्यू होगा बेटा 1,20,000। क्लियर? Now, what's the amount received by the company? Amount received by the company, just 53 bank account debit. Bank account debit. अब इसमें देखेंगे आप कि कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं। एक फर्स्ट कॉल का जो है पैसा कौन नहीं दे रहा है, 100 शेयर्स हैं जिसके पास, तो वो भी डेबिट होगा। चूंकि वो पैसा नहीं मिल रहा है तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब अमाउंट होगा बेटा, कॉल सिग्नेचर होगा 100 शेयर का पैसा नहीं मिला तो 100 इंटू 400 रुपीज नहीं मिल रहा है तो 400 ये हो गया और 1,20,000 माइनस 400 इक्वल टू 1,19,600 आप पैसा पा रहे हो गया 1,20,000। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके तुरंत बाद जो ये 100 शेयर वाला है इसका जो है शेयर जब्त कर लिया जा रहा है बेटा। तो जब शेयर जब्त किया जाएगा तो आप देखिए एंट्री, इससे कितना पैसा मांगा गया, हमें ये ध्यान देना है कि इससे जो है कितना पैसा मांगा गया, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक ही पैसा मांगा गया तो फर्स्ट कॉल तक 4 दिन 7 रुपए होते हैं। तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, एंट्री होती है जो ये आपकी छठी एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट व्हेन द shares forfeited, the share capital reduces. Share capital account debit. Amount will be 100 into 7. 100 शेयर जब्त किए जा रहे हैं 700। अब इसमें कितना पैसा नहीं दिया है, कॉल सिनेरियर है तो 2 कॉल्स इन एरियर उसे क्रेडिट कर देंगे जो नॉन पेमेंट है। 2 कॉल्स इन एरिया से एंड 2 फॉरफीचर अकाउंट। 2 फॉरफीचर अकाउंट। 2 फॉरफीचर अकाउंट। अब अमाउंट हो जाएगा कॉल सिनेरियर का आपका 400 है तो फॉरफीचर जो होगा 300 का होगा, 700। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट
step, just the entry number 7, आप सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे। सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, क्या होगा? शेयर सेकेंड कॉल डेबिट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब शेयर सेकेंड कॉल पर आपका बेटा कितना मांगा जा रहा है पैसा? 3 रुपए। थर्ड, अब आपका जो 100 शेयर जब्त किया जा चुका है, उस अब शेयर सेकेंड कॉल तक आपके पास कंपनी के पास शेयर कितने बच रहे हैं? 30,000 माइनस 100 मीन्स 29,900 शेयर ड्यू करेंगे। 29,900 इंटू 3 इक्वल टू 0 0 3 9 का 27, 3 9 का 9, 3 9 का 27 प्लस 2 29, 3 2 का 6 and 2 8, 89,700 रुपए आपके ड्यू होंगे। 89,700, 89,700। अब अमाउंट रिसीव करोगे आप, 8वीं एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इस पर अब देखेंगे एक शेयर होल्डर है जो इस पर पैसा नहीं दे रहा है। कौन है वो? जिसके पास 200 शेयर्स हैं, फेल टू पे द सेकेंड कॉल। तो आप उसे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल। अब अमाउंट होगा कॉल्स इन एरियर का 200 इंटू 3, 600 नहीं दे रहा है। अब 89,700 में से 600 यदि माइनस कर देते हैं आप, तो आपका आएगा 89,100 and the amount will be 89,700। इसके शेयर को भी कंपनी फॉरफिट कर ले रही बेटा, इसके शेयर को भी कंपनी जब्त कर ले रही है। तो अब इसके बाद द फॉरफिचर की शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, इससे पूरा पैसा मांगा गया है। इसके बाद जब्त हो रही है तो 9वीं एंट्री होगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 into 10, 200 into 10, 2,000. 2 calls in area, 2 calls in areas, 2 calls in areas कितना हो जाएगा बेटा? कितना पैसा नहीं दिया है? 600।
600 रुपीज इसने नहीं दिया है, और टू फॉर फ्यूचर, टू फॉर फ्यूचर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 1004, ये 93 will be passed for these questions. अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका सलूशन बनता है। आप देख रहे हैं कि ये फॉर फ्यूचर का अमाउंट पूरा हो गया तुम्हारा 1400 आपके गोपाल का, और 300 रुपए गोविंद का मिलकर के 1700 रुपए फॉर फ्यूचर में। अब ये शेयर्स यदि री इशू किए जाते तब इस फॉर फ्यूचर से पूरा बेच दिए जाते, तो मान लो फेस वैल्यू बेचे जाते तो 1700 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते। मान लीजिए 100-200 कम किए जाते तो वो 200 रुपए इससे कवरअप करके बाकी जो अमाउंट बचता उसे हम कहां भेज देते, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते। तो क्वेश्चन को इस तरह से क्वेश्चन को समझना चाहिए पहले इंफॉर्मेशन को, और स्टेप बाय स्टेप जब सलूशन आप बनाते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जैसे कंपनी के पास 5 लाख शेयर हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल है 5 लाख रुपए, ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 रुपए के शेयर से एक शेयर का कीमत है, तो कुल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास 50,000 हो गए। उसमें से वो कंपनी क्या कर रही है बेटा कि 2 लाख का एक एसेट्स खरीद रही है, उस 2 लाख के एसेट्स में पैसे के बदले कंपनी शेयर दे रही है। तो कुल शेयर कितने के हो जाएंगे आपके, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10, फुल्ली पेड शेयर दे रही है, तो इसका मतलब है कि 20,000 शेयर कंपनी जो है एसेट्स में इन्वेस्ट कर दे रही है और 30,000 शेयर पब्लिक को दे रही है। तो आप देख रहे होंगे कि इन 30,000 शेयर्स में कैसे कैसे इस पर एप्लीकेशन पर 3 रुपए के हिसाब से 90,000 ये हो गया। चौथी एंट्री में फर्स्ट कॉल पर वो 4 रुपए ले रही है तो 1,20,000 हुआ। एक शेयर होल्डर है 100 रुपए का, वो नहीं दिया, 400 माइनस हो गया तो ये पैसा रिसीव हुआ। उसके शेयर को जब्त कर लिया 7 रुपए पर, तो ये चीज है 7 रुपए का 700 हुआ और 400 रुपए उसका बकाया और 300 रुपए उसका जब्त कर लिया। तो इस तरह से सलूशन बनाते